बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर आदि। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो इन दिस सेकंड सेशन हम जो कंटेनर टेक्नोलॉजी है उसका ओवरव्यू प्राइमरीली कवर है एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस कंटेनर टेक्नोलॉजी। और नीड हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं, व्हाट इज द नीड, and now our task is to focus on the container basics of container technology. So, container approach for isolated applications. So that means we can use the operating system features uh, to isolate the applications to a further level. एक level उनका हम increase कर सकते हैं. So when the operating system mechanism are used in the applications for isolation, so this primarily creates an environment for the application, और इस चीज को फिर कंटेनर के नाम से इंडस्ट्री में जो है वो primarily used as a container. So at any time, a server computer runs a set of containers, each of which contain one application. So that's why there is one application per container. Remember, application is a process, or a process can have multiple processes inside. ऐसा process इसके application के हो सकते हैं. And similarly, we can enhance the concept of process, but the concept is that we are creating a software wall which is primarily become the part of the application, and it facilitates the isolation between different applications. So this is the main feature. So a container consists of an isolated environment in which an application can run. A container runs on a conventional operating system, and multiple containers can run on the same operating system concurrently. एक ही वक्त में, जैसे वर्ड की हम एक से ज़्यादा फाइल्स ओपन कर सकते हैं, साथ साथ अडोब एक पीडीएफ भी ओपन कर सकते हैं, और भी मल्टीपल टाइप ऑफ फाइल्स डिफरेंट, क्योंकि इनको लॉन्च करने की एप्लीकेशन ज़्यादा थी, तो वो एप्लीकेशन के साथ हम ईच कंटेनर provides us isolation, which means an application in one container cannot interfere with an application in another container. जैसे आमतौर पे अगर हम प्राइमरली बात कर रहे हों सिंपल, जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम मल्टीपल एप्लीकेशन तो यूज़ कर रहे होते हैं, और हमें नहीं पता चलता कि जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है. लेकिन जब हम एक क्लाउड यूज़र की बात करेंगे, तो क्लाउड यूज़र के पास जो है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन, यानी जो उसने सब्सक्रिप्शन की हुई है उससे लिंक उसकी इंफॉर्मेशन होगी, और वो देख पा रहा होगा कि उसकी जो एप्लीकेशंस हैं या जो उसका जो सब्सक्रिप्शन में जो प्रोसेस तरीके से जो है वो चल रहा है. ये बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होगा, ये क्लाउड जो सर्विस ओनर है या जो सर्विस सेटअप है उसका प्रोसीजर है, जो कि जो एक ऐसी इन्वायरमेंट बना जिसमें के ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो क्लाउड सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड किया जा सकता है. बट ऑब्वियसली स्कोप है वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू विजुअल मशीन एंड विजुअल टेक्नोलॉजी, विजुअल मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So Docker containers. So Docker primarily an open source project, and they primarily the technology is famous with their name. They are the Docker containers. So Docker approach has become prominent because of the following reasons: because they provide the development tools which are very important for any app development environment, and they provide the software bundles that mean the pre-built software applications which can be used in the containers, and they primarily uh, they made some techniques the layering structure कि आप जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए एक पूरा एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, and they allow us the reproducible execution across hosts. And that means the different physical hosts can run the same application. So it is possible because the container with the application become one package जो कि image कहलाता है, and that image can be copied to every other host. जब एक दफा application with container ready हो गई, तो अब वो कहीं पे भी उसको execute किया जा सकता है by using the Docker tools. Docker tools are the Docker engine is required. जो अभी हम देखेंगे इसमें. सर ये कहीं पर भी मीन्स क्लाउड एज अ क्लाउड सर्विस. देखिए क्लाउड को इनेबल करने के लिए क्लाउड जो है that is primarily the realization of elastic compute service. एक चीज तो ये याद रखिए, virtualization is one way to achieve the goal of elasticity. अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ये चीज बना दें, then there is no need of primarily developing the tools outside the boundaries of the operating system. But because the जो operating system पहले से बने हुए हैं, they are not designed for the cloud as the cloud operating system. तो ये एक intermediate strategy है जिसको हम virtualization कहते हैं और जिसको हम Docker containers कहते हैं. Eventually अगर से ये prediction नहीं है, लेकिन आप assume कर सकते हैं
कि जब एक क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है, एक क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती, then that system contain the pre the core infrastructure जो कि इलास्टिक कंप्यूट को इनेबल करे at the kernel level, that mean the heart of the operating system. ये जितना भी हम अभी पढ़ रहे हैं ना, that is primarily a step which is intermediate step towards the realization of the cloud service. ध्यान में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आपके सवाल का जवाब होगा, जिसमें आपने ये कहा है कि क्या ये डॉकर कंटेनर जो है ये क्लाउड बजाते खुद क्लाउड है? नहीं नहीं, ये बजाते खुद क्लाउड नहीं है। ये असल में वो जो इलास्टिक कंप्यूट सर्विस है उसको इनेबल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जो कि विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप इसमें। ये समझ में आ गया है? जी जी सर, आगे थैंक यू। ये असल में कंसेप्ट थोड़े से चूंकि वो इंटीग्रेटेड है और लिंक्ड है, लिहाजा थोड़ा सा जरा, और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे किसी जमाने में जो ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस सूरत में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर अर्निंग बिकॉज दे आर मेकिंग वेरी गुड वेब ब्राउजर्स फॉर द कंपनीज, लेकिन इवेंचुअली द वेब ब्राउजर बिकम द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम and the business of those companies goes away to are transformed to a different form. ये कहना ज्यादा appropriate होगा। Then the second story is the antivirus story, और एंटीवायरस में आपने देखा कि जो लाइनक्स है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, they have made their own strategy of securing their operating system. And one strategy which is adopted by the Microsoft is to make the antivirus software free, or make the antivirus software a part of their operating system. Okay? So this kind of things will go a step further, and there will be a cloud operating system. यकीनन इस पे जैसे कहते हैं कि Google is a cloud. So the new name of the company Google is cloud. Amazon is a cloud. Microsoft is primarily now a cloud company. ठीक है? So अगर आप क्लाउड कंपनीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मेजर प्लेयर्स हैं, दे आर नाउ आल्सो नोन एज दे आर प्राइमरली द क्लाउड ऑफर्स क्लाउड। ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ओपन सोर्स कम्युनिटी आल्सो हैव इट्स ओन रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द कंप्यूटिंग एरिया। जैसे कि हमारा जो कोर्स का टाइटल है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो द कंप्यूटिंग एरिया, the open source community is also giving service and coming up with ideas and with the realization of those ideas, and especially to perform some experiments and see the proof of concepts by your own desktop. So that is a good approach जो कि जो promote कर रही है different concepts को, और useful concepts are commercialized, obviously commercialized, so that they can so that a business can primarily can become the part of the business process. So ultimately these things are being used for business purpose, for the commercial, some commercial value should be there. ठीक है ना? Without any commercial value, कहते हैं ना, there is no free lunch. So without any commercial value, it is difficult to attract someone to learn these things nowadays. So Docker provides Docker containers. So Docker provides an approach, or initially it is just a container technology, but now Docker is a complete suite in itself. जैसे आपने पूछा ना, Docker is a cloud. Docker is a primarily a virtualization technology, जैसे कि virtual machines technology है, but it goes a step beyond that. क्या स्टेप बियॉन्ड दैट है? अगर मैं जल्दी से 2-3 स्टेप्स बता दूं, ये रिपीटिशन ही है। better isolation between applications, and removal of formal operating system, जो कि virtual machine, and then multiple containers on a single operating system with those applications that require the isolation, and also
the reproducible nature of the images. और इसके साथ साथ जो और बेनिफिट्स हैं, ओके आपने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। इसमें भी जो है वो चूंकि अटेंडेंस जो है वो हमें मार्क करनी पड़ेगी मैनुअली आफ्टर जब फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी, तो उन्होंने कहा था अटेंडेंस जरूर ले लीजिए। Okay, so there are four different areas or reasons why these become prominent. हम इनके जो रिलेटेड स्लाइड्स हैं उनसे थ्रू नहीं होंगे, अगर वो इसी का पार्ट है, लेकिन मैं ब्रीफली इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट इजी। और जब हम चूंकि आपकी क्लास में जितने कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होंगे, they know that to design an embedded system they need a tool chain, और जैसे ये वो Arduino है, Arduino IDE, and similarly the set of tools which are coming with the Arduino IDE, right? Similarly for the जो सॉफ्टवेयर से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, they are already familiar with the .NET development environment, DevOps kind of things. So a good development environment can attract multiple programmers and even the software houses, so that they start developing things with ease. Okay. Similarly, a repository of software जो कि जैसे कि Google Play है, इस तरीके से और भी कई कंपनीज हैं जिनके बड़े फेमस जो है वो software repositories हैं. So the software which is available for use, commonly used software mostly, and the techniques which allow the rapid instantiation, that means rapid launch of the isolated applications. And the final thing is we can primarily move one जैसा कि one virtual machine migrated one physical platform to another physical platform. So there should be a reproducible execution across hosts. So these four are the prominent areas which are linked with the Docker containers. अब हम इनको स्किप कर देंगे, सिर्फ कुछ डायग्राम्स को देख लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह चले जाएंगे कि डॉकर में प्राइमरी क्या है। थोड़ा सा डेवलपमेंट टूल में रैपिड इंस्टेंशिएशन में और रैपिड एग्जीक्यूशन में कुछ स्लाइड्स हैं, बट a summary of all those things is the Docker technology makes app development easy. So it is very easy to primarily learn how to develop applications. Offer a registry of pre-built software, so the availability of software make it easy. जैसे कि एक वेब सर्वर है, बनाना नहीं पड़ेगा, अवेलेबल होगा, आप just you have to import it to your application. And optimize the time required to start a container, which is the benefit of as compared to virtual machine technology, and guarantee the reproducible execution. क्योंकि जो इमेज होगा, जो कंटेनर बनेगा विद एप्लीकेशन, जो इमेज होगा वो सेम होगा, उसको किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. Then there is a Docker terminology, and Docker terminology are using the term image, term layer, container. Similarly, Docker file, Docker build, and Docker run, और आगे उसके पैरामीटर्स हैं. सबसे पहले हम इमेज पे फोकस करेंगे. So image is a file that contains the binary code for a container along with its dependencies, so that कि जो है वो हम उसको रन कर सकें by using the Docker engine. इसकी जो एनालॉगस या जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो करीब करीब जो टर्म्स हैं वो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स में डॉट आउट एक्सटेंशन की फाइल है, और विंडोज में आमतौर पर डॉट एक्सिन फाइल होती है जो कि एप्लीकेशन की फाइल होती है. सो द लेयर, one piece of software added to an image as it is built. So when we are making the image in the Docker app development, the image can have multiple layers and even single layer as well. So it is analogous to a software module. मतलब में आप लोगों ने MATLAB
यूज किया होगा मैटलैब जो सॉफ्टवेयर होता है, और जी सर। में आपने जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट टूल बॉक्सेस, सो ईच लेयर इज प्राइमरली a different toolbox or set of functions. Similarly, the container term. So this is an instance of an image, and it's an executing process inside the memory. The Docker file is specification and how to build an image. तो एक डॉकर फाइल हमें बनानी पड़ेगी, इसकी एक एग्जांपल आ जाएगी एक छोटी सी. This is also referred to as makefile procedure in Linux, in which और अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में जो सोर्स कोड होता है उसकी बात हो रही है. तो सोर्स कोड जो है उसको कंपाइल करने के लिए हम कौन सी फाइल यूज करते हैं. सो एक सोर्स कोड होता है और उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, एक कंपाइलर से उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करते हैं. तो उसमें सोर्स कोड भी यूज हो रहा होता है और साथ साथ वो जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो भी यूज हो रही होती है. तो यहाँ डॉकर फाइल जो है ये उस सोर्स कोड के इक्विवेलेंट है. ऑब्वियसली ये एक एप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए कि जो है वो इमेज को कैसे बनाया जाए. Then there is a docker build, a command which primarily creates the program, a command that constructs an image according to a docker file. Then docker run application, and X is primarily an application. So a command that runs image X as a container. So that means we cannot run the application by double clicking on it, जो कि container application है. We need to have the Docker engine runtime so that we can launch an application as a image जिसके अंदर कंटेनर भी होगा और एप्लीकेशन भी होगी. अगर इसको मैं दोबारा से डायग्राम पे लिखना है, जिस डायग्राम को आप देख रहे थे. So in this diagram, when we launch this the application along with the container, then we need to have the Docker engine. So that Docker engine is then primarily installed on this host operating system so that the namespace can be used by the Docker engine to launch these applications. इसकी diagram अलग है, उस diagram को देखेंगे कि इसकी जो आर्किटेक्चर है वो क्या है. यहाँ कोई सवाल तो नहीं है, these terms पे बार-बार आएंगे इसलिए उसने एक जगह पे इस terms को ना लिख दिया. So there is an image, there is a layer, there is a container, and there is a Docker file, and there is a Docker application engine जो कि primarily different parameters के साथ यूज होगा. जैसे यहाँ Docker build पैरामीटर के साथ यूज हुआ है, यहाँ Docker run के साथ यूज हुआ है. इसी चीज को यहाँ मैंने थोड़ा सा यानी जो बुक ने एक्सप्लेन किया है कि Docker image is a file that can be executed, but obviously जो वो एग्जीक्यूट करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी. कंटेनर इज आल्सो एग्जीक्यूट, कंटेनर इज द एग्जीक्यूशन ऑफ इमेज. व्हेन इमेज इज एग्जीक्यूटेड इट इज कॉल्ड अ कंटेनर. So image have two forms, one is called the partial image and another is called the container image. Partial image means it is primarily a building block, इसी की मदद से जो है वो एक कंटेनर इमेज बनेगा. That include all the software for an application. That means the container image contains the application as well as the requirements or the dependencies of that application. It does not as simple जैसा वो नजर आ रहा है कि it contains the application and a container, because an application when run it need to have the runtime environment as well. जैसे सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज का एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जब आप किसी और सिस्टम में रन करेंगे जहाँ सी लैंग्वेज इंस्टॉल ना हो तो वो एग्जीक्यूटेबल रन ही नहीं होगी, वो एरर देगी या डिपेंडेंसीज आर मिसिंग. सो वी प्राइमरली यूज द रन टाइम एनवायरनमेंट जिसके अंदर फिर हम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको चलाते हैं. सो दैट मीन्स द कंटेनर कंटेन द image, container image contain the application and also the relevant software. Now partial images form a useful part of the Docker programming environment, which is analogous to the library functions in a conventional programming environment. So that means we can see the partial images
are primarily that contain the libraries, different libraries. And the Docker offers a registry of pre-built partial images जिसमें library files जो है वो मौजूद हैं, and we can use them in the application to make a container image, and these images are primarily can handle a common tasks जो कि runtime environment में होती है. Okay, similarly, the Docker uses the term layer to refer to each piece of code a programmer include in a container image. आमतौर पर लेयर का कंसेप्ट हमने कहाँ सीखा था, जब हमने TCP/IP प्रोटोकॉल सूट नेटवर्क में पढ़ा. उसमें हमने जाना था there is a layer structure and each layer provides some function to the overall network stack. Similarly, this is an implementation. Docker implements that kind of setup in which different layers can be used by the application developer या जो programmer होता है. So programmers start by specifying a base image and that add one or more layers of software to make its containerized application. तो उस application को फिर containerized application कहते हैं. That means the application with a container. So for each layer, a programmer has a choice that he either programmer write the full code by himself or herself, or use the pre-built building block, that means the already available code in the registry. So this choice is also obvious in other platforms, जिसमें कि हम हमारे पास एक लाइन कोड में हम पूरा वेब सर्वर जो है वो अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, और वी कैन राइट मल्टीपल लाइंस सो दैट जो है वो हमारा जो वेब सर्वर है वो बन जाए. So there is no standard compiling tools in Docker, but it uses a Linux format जिसमें जो है वो एक मेक फाइल यूज की जाती है, और उसको डिफरेंट जो है वो फाइलें दे देते हैं फोल्डर में, एक फोल्डर में मुख्तलिफ फाइल्स दे देते हैं, और उसके बाद मेक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, और वो क्या करती है उन फाइलों को कंबाइन करके एक इमेज में कन्वर्ट कर देती है. So programmer creates a text file with items that specify how to construct a container image, and by default this text file is called a Docker file, and programmer then runs a Docker build with the read Docker file. इसमें मतलब ये कि वो उस फोल्डर में जाके जहाँ ये डॉकर फाइल और उसकी जो डिफरेंट जो डिपेंडेंसीज है वो रखी होती हैं, वहाँ जाके डॉकर बिल्ड की कमांड चला देता है, और वो फिर क्या करती है कि वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देती है. So that image is called the container image, and it is also called the containerized application. Obviously जब वो प्रोसेस रन होगा तो वो कंटेनर बन जाएगा पूरा. So remember, Docker container image is not executable, but we need a Docker application or Docker engine जो कि primarily उसको चलाएगा. ठीक है ना? That is explained in this these few lines. So next section describe how we primarily use it. सबसे पहले इसकी आर्किटेक्चर देख लें. आर्किटेक्चर जो है उसमें we primarily have a background process which is called Docker D. D stand for daemon, जो कि लाइनक्स में आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड. daemon जो है ये प्राइमरीली एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है. एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो कि मेमोरी के अंदर जो है वो रन हो रहा होता है. So this Docker daemon is primarily running on the backend, and it is called by the Docker application. समझिए कि कमांड है ये with the parameters, and those parameters are then used by the Docker daemon to primarily fetch the images which are inside the disk, and those images primarily is a container image. When it is launched, it primarily become a containerized process या containerized application. जब ये मेमोरी में कॉपी करेगा और उसके बाद उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा. So all these things are managed by the Docker D.
अब आप देखें ये डॉकर डी जो है ये वही काम कर रहा है जो वर्चुअल मशीन में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था, लेकिन विद लेस कंप्यूटेशन ओवरहेड और बर्डन. And similarly, it is using the namespace features in the host operating system to ensure the isolation of those applications which are running. So it is an alternative form of the virtualization technology, which is primarily promote the rapid application development and in the cloud environment. अब ये इमेजेस जो है ये किसी भी क्या कहते हैं फिजिकल मशीन पे रन हो सकते हैं, लेकिन अब इसको रन करने के लिए आप देख सकते हैं कि वी नीड टू हैव अ डॉकर डेमन एंड वी नीड टू हैव प्राइमरली ए डॉकर एग्जीक्यूटेबल, या जिसको डॉकर इंजन कह गया, इंजन टू प्राइमरली लॉन्च दोज एप्लीकेशंस. अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च नहीं होगा. मे बी इन फ्यूचर किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें ये डॉकर डी टाइप जो प्रोसेस है दैट इज पार्ट ऑफ द कर्नल, तो उसमें फिर ये दो प्रोसेसेस जो है ये गायब हो जाएंगे एंड देयर विल बी ए सिंगल रिपोजिटरी ऑफ इमेजेस एंड दो दैट कैन बी कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन लॉन्च. जरूरी नहीं वो इसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉन्च हो, मे बी दिस इज द मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और वो लॉन्च किसी और होस्ट सिस्टम पे हो रही है बाय द कमांड्स, जो कि आमतौर पर नेटवर्क में बहुत कॉमन है. नेटवर्क में जो कमांड्स आप देते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस जो है वो दूसरे जो सिस्टम होते हैं उन पर रन हो रहे हैं. दैट इज द बेसिस ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन, इसमें आप कमांड्स जो है. एनी क्वेश्चन हियर, यहाँ पे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? जी जी सर आइए. जी जी सर बिल्कुल आ रही है. हाँ, अभी तक मैंने इसको जो है वो क्या कहते हैं डॉकर को मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास, अपनी मेरे पास मशीन में इंस्टॉल हो गया है डॉकर, क्योंकि इसको हम वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. क्या कहते हैं एक वर्चुअल मशीन में भी डॉकर डीमन को रन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने उसमें कोई उसकी जो एप्लीकेशन है ना वो रन करके देखी नहीं. तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास तक जो है मैं उसको रन कर लूंगा और उसके बाद एक छोटी सी उसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लेंगे. इतना मुश्किल नहीं है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है पूरी डिटेल दी हुई है और एक छोटा सा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे और वो स्क्रिप्ट जो है वो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट जो है वो बना देंगे. तो ये मैंने कर लिया है, लेकिन अभी मैंने इसमें जो एप्लीकेशन है ना वो अभी लॉन्च करके देखी नहीं है. विजुअल मशीन पे तो हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो डॉकर कंटेनर है ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है. इसमें भी जो जैसे एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है और मैं एक वेबसाइट पे ABC के पैरामीटर लिखता हूँ और क्वाड्रेटिक फार्मूला की कंप्यूटेशन जो है वो क्लाउड पे हो रही है. तो ये छोटी सी जो एप्लीकेशन है ये क्या कहते हैं बहुत सारी बड़ी एप्लीकेशन जो है ना उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है. तो दिस इज अनदर थिंग. और दूसरा हम इसको वर्चुअल मशीन से कंपेयर कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो थ्योरेटिकली तो वो कह रहा है इसकी प्रोसेस इसकी बहुत अच्छी है. ओके डॉक्टर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में जैसे आपने देखा डॉकर डीमन नजर आ रहा था आपको, डॉकर डी के नाम से यहाँ लिखा हुआ है. सिमिलरली डॉकर जो प्रोग्राम है यूजर इंटरफेस प्रोग्राम एंड दिस सॉफ्टवेयर कलेक्टिवली इज नोन एज डॉकर इंजन. तो इसके प्राइमरीली दो ही कंपोनेंट अगर आप देखें तो डॉकर डीमन है और डॉकर है, यानी एक बैकएंड प्रोसेस है और एक जो सामने जिससे आप उसको कमांड देते हैं. आगे चलते हैं थोड़ा सा जो है वो इसको मैं थोड़ा जरा कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ और जो है वो सो how Docker primarily facilitate user to launch different applications. There are two type of primarily interfaces. One is the RESTful, yani the representational state transfer HTTP based procedure, and other is the CLI or command line interface. या दूसरे अल्फाज में ये समझिए कि एक वेबसाइट से आप मैनेज कर रहे हैं
क्या कहते हैं अपने कंटेनर एप्लीकेशंस को, और या फिर आप एक कमांड लाइन से कंटेनर एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहे हैं। ये जो REST लिखा हुआ है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। जब भी हुई हम कोई वेब ब्राउजर पे या जो इसका जो इंटरफेस है, वेब बेस्ड इंटरफेस है, उसके ऊपर जब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना के उसको एंटर करेंगे, यानी वहाँ पे उसको कहेंगे कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उसको पीछे एक स्टेट प्राइमरी पर्टिकुलर डिफाइंड स्टेट को जो है ना वो पीछे भेजेगी कि इस स्टेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज a concept which is used by the software primary। जब हम इसको पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम, तो उस वक्त जो है वो चूंकि अगर इतना फेमस नहीं था, लिहाजा ये चीज़ें जो है वो उस वक्त हमने सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पढ़ी थी, लेकिन अभी हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन किया गया है, बट इट इज प्राइमरली HTTP प्रोटोकॉल। दैट मीन वी कैन हैव ए एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर टाइप एप्लीकेशन, जो कि हम जो है वो कंटेनर्स को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सर ये पिछली जो सर पिछली स्लाइड में जो सेल आई था वो उसका बताएंगे ये क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस। ये मैं आपको बता देता हूँ ना, अगर हम यहाँ पे CMD लिख के एंटर करते हैं, अब हमारे पास जो है ये जो है ना ये कमांड आ गई ना अब आपके पास। इसमें आप जो भी कमांड लिख के करते हैं, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है आपके पास। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक, इसी जी जी सर, ये ठीक। चीज जो है ये हम एक वेब में रन कर सकें, यानी वेब ब्राउजर में रन कर सकें, तो फिर ये जो है ना ये एक जो रेस्टफुल इंटरफेस है ना उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ये चीज समझ में आई है? जी जी सर। हाँ, असल में सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो प्राइमरली होती है। ठीक ठीक, ओके सर। जैसे ये सही कह रहे हैं, ये इनका क्या नाम है, एक मिनट में देखूंगा। सर